welcome back to our YouTube channel Active English India. I hope that you're following me on my YouTube channel and liking my videos that I've put on IELTS and basic English. So before starting the video, please like, subscribe and share, and subscribe if you haven't right now. Also, I have to share one more thing. I have been getting a lot of suggestions and requests कि मैं bilingual होके पढ़ाऊँ. That means I use Hindi also, especially when it comes to basic English and grammar rules. So I'm going to be bilingual in basic and grammar rules, and I'm not going to be bilingual in IELTS. ठीक है, बिकॉज IELTS मैं ये मान के चलती हूँ कि IELTS के लिए आप तब अपेयर करते हो जब आप बेसिक लेवल क्रॉस कर चुके होते हो. ठीक है, सो आई एम नॉट गोना बी bilingual in IELTS. आई एम गोइंग टू बी bilingual only in basic and other grammar classes. Right? So let's start our today's topic, and today's topic is a very interesting topic. It's called the articles in English. Okay, so what are articles and why do we need them and how to use them? Okay, we're gonna study that today. So let's start the video. Now you can see I've already written few things on the board. So first of all, let me tell you what exactly are articles. English language में हमारे पास 3 articles होते हैं और ये articles होते हैं a and the. Okay, so there are 3 articles a and the. Now why do we need articles? हमें articles की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, to enhance the language, to point out something particular and to probably define what we say. ओके, वी प्रीफिक्स द आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स ताकि हम उनकी क्वालिटी बता पाएँ. ठीक है, या फिर हम उनके बारे में ज़्यादा बता पाएँ. राइट, सो आर्टिकल्स का यूज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite and definite. Okay, so as you can see on the board, indefinite and definite. So first we're going to discuss indefinite articles. Okay, so indefinite articles are 2 articles, a and an. Okay, a and an. We have indefinite articles, 2 articles, a and an. 2 articles हैं. पहला है a. We're going to discuss a first. Okay, so first of all the pronunciation is not a. ठीक है, हम उसे a नहीं प्रोनाउंस करते, हम उसे अ प्रोनाउंस करते हैं. हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया कीजिए. यू शुड ऑलवेज प्रोनाउंस करेक्टली. ठीक है, सो अ फर्स्ट वी विल डिस्कस अ. ओके, सो वेयर डू वी यूज़ अ? कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. वी यूज़ अ बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. नाउ वी ऑल नो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? 26 लेटर्स. ओके, आउट ऑफ विच 5 आर वोवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो जो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी साउंड के आगे आप अ लगाते हो. ओके, यू प्रीफिक्स अ बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. प्लीज़ पे अटेंशन टू साउंड. साउंड का मतलब स्वर. वो स्वर जो निकलता है उससे पहले आपको अ लगाना होता है. ओके, यू हैव टू प्रीफिक्स अ बिफोर दैट. फॉर एग्जाम्पल, अ रैट. ओके, रैट, र, आर. Okay, so the sound is of r, so we will put a before it. Dog, d. Okay, sound. Don't just go with consonants. ऐसे it is not necessary कि हर consonant के आगे a ही लगेगा. That is why I am emphasizing on sound. Okay, sound. Sound is very important. ठीक है, dog, d, girl, g. Okay, so g. This sound will take a with it. For example, I am a teacher. Okay, he is a student. My father is a technician. Okay, so all these sounds are related with consonant. So that is why we will put a before it. Now when we come to an is used with a vowel sound. Okay, with a vowel sound. Now how many vowels are there? We know how many vowels are there. Okay, it is A, E, I, O, U. Okay, these are 5 vowels. Now vowels means that these vowels are any letter which starts with each vowel will take an with it. ठीक है, हर vowel sound के पहले आपको an लगाना है. For example, elephant. Now E, elephant. Okay, so an. Then umbrella, again A. So an umbrella. Apple, a. A. So an apple. Okay,
So I am an Indian. Understood? So E. So these sounds you have to always put articles with sounds. कभी भी कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के साथ आप आंखें बंद करके ए और एन नहीं लगाओगे. अगर आपने सिर्फ कॉन्सोनेंट और सिर्फ वावल के बेस पे अपने आर्टिकल्स पुट अप किए तो आपका वो आंसर हमेशा रॉन्ग होएगा, आपका आर्टिकल्स यूजेज रॉन्ग होएगा. क्यों? क्योंकि हमेशा साउंड के साथ आर्टिकल्स लगते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे वावल साउंड आएगा वहाँ पे एन लगेगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे अ लगेगा. राइट? सो ए प्लस साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब जैसे कि अब मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही हूँ. ठीक है, ये यूज़र, यूनिट, यूनानिमस. ठीक है, यूज़र, यूनिट, यूनानिमस, इनके आगे अगर आप जनरली लगाते, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन होता कि आपको यहाँ पे आर्टिकल प्रीफिक्स करना है तो आप क्या लगाते? मोस्ट ऑफ यू वुड हैव पुट एन बिफोर इट. व्हाई? बिकॉज यू इज़ अ वावल. तो हमने देखा यू से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हमने आंख बंद करके वहाँ पे एन लगा दिया, विच विल मार्क योर आंसर रॉन्ग. आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने क्या सोचा था कि हमें वावल्स के आगे लगाना है आर्टिकल एन. ठीक है, पर हमने ये अपने दिमाग से निकाल दिया कि हमें साउंड के ऊपर लगाना है. ठीक है, तो यूज़र पे कौन सा साउंड आ रहा है? यू. दिस साउंड Y-O and Y is not a vowel. Understood? So that is why a user, a unit, a unanimous decision. Okay? तो मतलब जहाँ पे भी ये वाला साउंड आएगा, ठीक है, वहाँ पे हम अ लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा साउंड किससे बिगिन कर रहा है? कॉन्सोनेंट से. आवर साउंड बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट. सो दीज आर एक्सेप्शंस एंड दिस इज व्हाई you should always put articles with sound. Okay, pronounce it, उसकी pronunciation देखें and then prefix it. Okay, otherwise your answers will be wrong. Then next is and plus sound of vowel. Okay, अब and के साथ भी exceptions हैं. ठीक है, for example अब ये हम छुपा देते हैं. हमने यहाँ पे देखा MBA, our, honor. ठीक है, so MBA, our, honor. राइट? अब हमने देखा दिस इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, दिस इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड दिस इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट. मोस्ट ऑफ यू इन दिस केस आर गोना पुट व्हाट? अ. राइट? आई एम अ MBA स्टूडेंट. इट इज ऑलमोस्ट अ आवर नाउ. इट इज अ ऑनर एंड विद ऑनर आई हैव personally seen so many mistakes happening in articles. Okay, why? Because we don't pay attention to what is written here, sound. ठीक है, साउंड, हमें साउंड देखना है. हमें MBA में किसका साउंड आ रहा है? जब हम M बोल रहे हैं, MA, ठीक है, तो हमें साउंड आ रहा है M का. ठीक है, तो वो E से स्टार्ट हो रहा है. E is a vowel, so we will put and before it. ठीक है, कम बैक टू आवर. कई लोग इसको आवर बुलाते हैं, कई लोग इसको आर बुलाते हैं. दोनों केसेस में H साइलेंट है. H को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है? आ. आवर, आवर, समथिंग AO. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसके आगे एन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा वोवल साउंड निकल रहा है. ऑनर, अगेन हमारा H साइलेंट है एंड व्हाट इज कमिंग आउट? ओ. ऑनर, सो इट इज़ एन ऑनर. ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और यहीं पे हमारी मेजर मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है, अब जब मैं मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ तो हम मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? whenever we appear for any exam, you know, be it बैंक का एग्ज़ाम या फिर टीचर्स का एग्ज़ाम या फिर नेट का एग्ज़ाम, MBA एंट्रेंसेस लाइक CAT, MAT एंड ऑल अदर मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, वहाँ पे इन इंग्लिश सेक्शन यू ऑलवेज गेट फाइंड द एरर. ठीक है, error spotting questions. In these error spotting questions, these articles play a major role. Okay, what happens is that in some sentences there is a misuse of article. ठीक है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है. ठीक है, तो वहाँ पे मेजर वो गलतियाँ होती हैं. अगर आपको ये रूल्स नहीं पता हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं हो तो योर होल एग्ज़ाम विल बी रॉन्ग, योर आंसर्स विल बी रॉन्ग एंड यू विल लूज एन अपॉर्चुनिटी. ओके, सो पे अटेंशन टू आर्टिकल्स. आर्टिकल से मेजर
आपके स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. एंड फॉर आईएल्स एंड अदर एग्जामिनेशन में यू हैव राइटिंग एंड एवरीथिंग, आर्टिकल्स देयर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. ओके, इन योर स्पीच ऑल्सो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स मिसिंग है, योर स्पीच विल बी डिस्टॉर्टेड वन. ठीक है, इसके होने से ना होने का फ़र्क हमें नहीं पता करना है, हमें अपना फंडास क्लियर करने हैं. ठीक है, सो टू क्लियर दोज फंडास यू शुड पे अटेंशन टू articles, right? Now I'm going to move to the third article, which is the definite article, the, right? Okay, so coming back to the third article, which is the. Okay, so the, as you all know, it is a definite article. Definite means something particular, right? So the is used before particular things, and the usage of the article is very vast. ठीक है, the पर्टिकुलर चीज़ों के साथ लगता है, ठीक है, उनसे पहले लगता है. क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट चीज़ को बताता है कि ये एक डेफिनेट चीज़ है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यूजेज इज रिटन हियर, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग or a place or a person or anyone. Okay, for example, this is an example which I have written, this is the pen I lost. Okay, तो मैं उस पेन की बात कर रही हूँ जो मैंने खोया है. ठीक है, वो कोई भी पेन नहीं है, मैं एक ही पेन की बात कर रही हूँ जो मैंने खोया है. सो आई हैव पुट द बिफोर इट. ठीक है, मैं इसके आगे अ नहीं लगाऊंगी. मैं ये बोल सकती हूँ आई लॉस्ट अ पेन, तो वो कोई भी पेन हो सकता है, राइट? बट दिस इज़ द पेन आई लॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन. और आई फाउंड द पेन आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गया जो मैंने खोया था. तो अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस में आप पता कर सकते हो कि मैं एक ही पेन की बात कर रही हूँ, जो मैंने खोया था वो मुझे वापस मिल गया है, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग पर्टिकुलर, आप उसके आगे द लगाते हो. ठीक है, देन बिफोर फैमिली नेम्स. ठीक है, बिफोर फैमिली नेम्स. फैमिली नेम्स क्या होते हैं? हमारे सर नेम्स, जैसे कि द शर्माज, द खान्स, द अंबानीज, ओके, द टाटाज, द बिरलाज, राइट? तो इन सारे फैमिली नेम्स के आगे हम द लगाते हैं. क्यों? क्योंकि दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फैमिली. एक पर्टिकुलर फैमिली की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनके आगे द लगाएंगे. देन बिफोर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़. ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के आगे द लगता है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज्ड. इस पॉइंट पे आके बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ में फिर वो हर कंट्री के आगे द लगा देते हैं. ठीक है, जैसे कि द इंडिया, ठीक है, द चाइना, या फिर द अफ्रीका. ठीक है, इन कंट्रीज़ के आगे द नहीं लगेगा. ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़. ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़. इंडिया ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ नहीं है, इंडिया खुद एक कंट्री है. ठीक है, सिमिलरली चाइना ग्रुप ऑफ कंट्री नहीं है, नेपाल ग्रुप ऑफ कंट्री नहीं है, इट इज़ वन कंट्री. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, जिस कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं या बहुत सारे किंगडम्स हैं या 2-3 किंगडम्स भी हैं, ठीक है, रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के आगे हमें द लगाना होता है. जैसे कि द USA. ठीक है, सो USA इज़ अ रिपब्लिक कंट्रीज. उसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स आते हैं या फिर बहुत सारे रिपब्लिक्स आते हैं और बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंट्रीज़ आती हैं. दैट इज़ वाई द USA. देन द USSR, यूनियन सोवियत ऑफ रशिया. तो रशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द USSR. और द UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई आता है, सऊदी अरेबिया आता है. सो कलेक्टिवली उन कंट्रीज़ को हम एक नाम दे देते हैं और उन नामों के आगे हमें द लगाना होता है, नॉट बिफोर अ सिंगल कंट्री. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स होती हैं. फोर्थ, बिफोर इम्पॉर्टेंट रिवर्स. ठीक है, हर इम्पॉर्टेंट रिवर के आगे हम द लगाते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स. ठीक है, ओके, ऑल दीज, द नाइल, द अमेजॉन. इन सारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स के आगे हम द लगाते हैं. Before famous monuments, okay, before all the famous monuments which are there in the world, you put the, okay, to define them. Particularly हम उसी monument की बात कर रहे हैं, जैसे कि the Taj Mahal, the White House, the Empire State Building, the Burj Khalifa, right? So all these are important buildings, monuments. इन सब के आगे हम the लगाएंगे.
बिफोर मेजर ओशंस, ओके, रिवर्स के साथ साथ ओशंस पे भी हम द लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि द अटलांटिक, द आर्कटिक, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ओशंस, रिवर्स, इन सब के आगे वी पुट द। बिफोर सुपरलेटिव्स, नाउ व्हाट आर सुपरलेटिव्स, ठीक है। सुपरलेटिव्स होते हैं फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, लास्ट, बेस्ट, वर्स्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगता है किसी भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में उस थर्ड फॉर्म से पहले आपको द लगाना होता है, जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, द बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल इन द पार्टी वॉज शुभ्रा, ओके, द लास्ट पर्सन इन द रेस वॉज कमल, ठीक है। सो इन ये सब क्या है, सुपरलेटिव्स है, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड सुपरलेटिव्स, उसके आगे आप द लगाते हो, ठीक है। बिफोर अ सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, बिफोर अ सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मतलब जब हम किसी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि द ओल्डर जनरेशन, द यंगर जनरेशन, और द ओल्ड, द यंग, द टीन्स, राइट, तो इनके आगे हम द लगाते हैं, अंडरस्टूड। These are the 8 major rules of using the in English grammar. The is a definite article, ठीक है, ये जो है इसका सबसे ज़्यादा यूजेज है, तीनों आर्टिकल्स में से द का सबसे ज़्यादा यूजेज है। द ही हमेशा आपको हर कंपेटिटिव एग्ज़ाम में ओमिशंस में मिल जाएगा या फिर करेक्शंस में मिल जाएगा, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में आपको करेक्शंस में भी मिलेगा। एंड मेजर पार्ट आर्टिकल्स का यूज़ होता है ओमिशंस में, ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, दैट आई एम गोइंग टू टेक अप इन अ सेपरेट वीडियो आफ्टर दिस, राइट। ओमिशंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको यूजेज पता होना चाहिए। जब हमें यूजेज पता होगी उसका नेक्स्ट स्टेप ही ओमिशंस होता है। ओमिशंस मतलब जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता, ठीक है, वी विल टेक इट अप इन अ डिफरेंट वीडियो, राइट। फर्स्ट लेट अस डिस्कस दीज 3 एग्जाम्पल्स, आई एम गोना शो यू दीज 3 एग्जाम्पल्स, हम साथ साथ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। कपूर्स होस्टेड अ डिनर लास्ट नाइट, कपूर्स होस्टेड अ डिनर लास्ट नाइट। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फैमिली नेम्स के आगे हमें क्या लगाना होता है, द, राइट, फैमिली नेम्स के आगे हमें द लगाना होता है। सो द कपूर्स होस्टेड अ डिनर लास्ट नाइट। फर्स्ट विनर रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल। Now we know first is a superlative form. Superlatives के आगे क्या लगता है, the. So the first winner received a gold medal. She finally saw movie she was waiting for. Now most of you will think कि अब यहाँ पे 2 sentences में हमने पहले लगाया the, तो यहाँ पे भी पहले होगा। It is not necessary, ठीक है, वो examples ऐसे थे, आपको कहीं पे भी बीच में भी लगाना पड़ सकता है, okay. So articles are very important in English and especially the use of the, okay, the article बहुत important होता है। So I hope the usage of articles are clear. हमें जितनी वीडियोस बनाऊंगी मैं बाइलिंगुअल होके बनाऊंगी ताकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका से आप फेमिलियर हो पाओ, एंड माई बेसिक एंड ग्रामर रूल्स विल बी इन बाइलिंगुअल, ओके। आई एम गोना यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।